gmail.com. Today I am discuss on a simple filter application for Android and iOS. And please subscribe my YouTube channel if you not subscribe. And so let's start on examples there. And today is the filter text field example. So today I'm discussion on how to use a text field in filter. In filter, how to add a text field like as in Android, edit text to input any key like as a username, enter password, enter username, something like this. So let's start on in filter dart tutorials. I am sharing how to use a width in a filter width in text field. Text field is usually get for text input from the user end, like as input username, input email id, input password, the same into your Android application. In text field is that when you click on the text field, we focus on and enter the value from keyboard in your mobile. Filter text width is a simply like as edit text in Android Studio. For Android application, for basically used for is this enter the value from user end, and you can store the value easy. So let's start on the filter edit text tutorial. So here simply copy the whole code and paste on your main.dart file. So click on under studio, click file and new, after that new filter project. Here you can easily create a new filter projects like as click on file, then you can new, after that you can click on new filter projects. In filter projects, here you can see filter application, filter plugins, filter package and something. So here I'm click on filter application. Then you can set your application name like as filter app. Here you can set SDK path. Here you can set the path of your projects. The my name application name is filter text field, and filter SDK path and description if you require. And filter text field, the all are in small letter. Then click on next, and here you can add domain name, then finish. Your projects is build running on build mode and creating your filter projects. So after your projects in run, then you can simply copy the code and paste, and then you can run. Here is your projects. By default here you can see some code. Delete on all the code, clear your main.dart file. In projects, your project's name, and left folder you can see your main.dart file. Here you can clear your code and copy this code, copy this code and paste your main.dart file. In
main.dot file you can paste the code, and after you can run your application. First of start your emulator if you net create, and then run your application. Your application is build mode and running here. Here you can see the output like as edit field, and enter the value from user end through keyboard and something else. This is the basically used for like as you can create a login screen your mobile application. Also you can use username, password, any address field. Here you can use a filter text field for input from user end. My projects on running mode and make build library. Here you can see the output. Application run, and you can see the output. Here you can see your project's output like as username. Enter username. I am enter like as my name is Parmeet. This is the text field in filter, and how can use in the filter like this. Here you can see in your main.dart file run a method class my app class. You can state full width, and my state is create. My state is my app, and here you can use text editing controller, and then we can set your width, create scroll, use app bar, titles for your app, and then in your body center use column. Then you can use container. In container you can set margin, enter text field and the input, and input type, and takes the label like as in Android we can set hint. Here you can set label and on change text state, and get user is equal to text on change पे यूजर इज इक्वल टू टेस्ट, जो यूजर की वैल्यू वो टेक्स्ट के अंदर सेट हो जाए. सो एंड कंटेनर चाइल्ड यूजर वैल्यू, जो यूजर इनपुट करता है उसी के अकॉर्डिंग ये वैल्यू हमारी कंटेनर में सेट हो जाएगी. सो इजली यू कैन सी हेयर आउटपुट. सो दिस इज द example for filter text field. Easy, you can add a text field in your filter application for both Android and iOS. Thank you. Hey friend, welcome to codeplayground.com. Please subscribe my YouTube channel if you not subscribe, and press on bell icon for all new update video and solution for Android. So let's start on next video, Android with Flutter. In Flutter application we can make easy UI for both Android and iOS applications. Here you can see all video for Android and Flutter, all latest
UI design, solutions, payment gateway, machine integrations, whole Canva print, animations, form, UI designing, splash screen design, all solutions here. So today I'm discussing on Flutter bottom navigation बार एग्जाम्पल। फ्लटर के अंदर हम बॉटम नेविगेशन को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, बॉटम नेविगेशन कैसे बनाएंगे, वो हम आज इस एग्जाम्पल में डिस्कस करेंगे। तो here is you can see output Flutter bottom navigation like as home, search and profile, search, home। हम फ्लटर के साथ बॉटम नेविगेशन को कैसे ऐड करेंगे हमारी एप्लीकेशन के अंदर फॉर बोथ iOS एंड एंड्रॉयड, वो हम डिस्कस करेंगे। सो जस्ट फॉलो सिंपली स्टेप एंड मेक योर bottom navigation bar in Flutter. So here you can see the simplest step. First off, start your Android Studio and create your Flutter applications. Let's start your Android Studio and create your Flutter application with Flutter application. And after, open your main.dart file and delete all code in your main.dart file and add this code on your main.dart file like this. First step, add this code in your main.dart. Second step, create a home width dart file and add this code for bottom navigations bar, this one. And third step, make a placeholder width dart file and add this code. So these three simple steps you can make your bottom this type of UI for Android and iOS. Simply follow these three steps. So let's start on Android and open. Here I'm creating a three simply main.dart file. In main.dart file, first of in main.dart file, make function main function, run your application and create class app, extend here and extend stateless width, return material, set title my Flutter application and click add on home. This is add, import your home.dart file. How to create? Click on lab folder, main.dart file open, follow step, main.dart file open, add this code on your Flutter. After that, step 2, create home width in dart file in code. Simply just lab, click on lab, new के अंदर dart file, click on dart file and click set. If you want your code is a manage
तो यू कैन क्रिएट ए फोल्डर विद ऐप एग्जाम्पल। आप हम फोल्डर को कैसे ऐड करेंगे, हमारे लैब के अंदर फोल्डर को कैसे करेंगे, क्लिक ऑन राइट क्लिक ऑन न्यू, न्यू के अंदर हम पैकेज, और पैकेज के अंदर हम करेंगे ऐप अंडरस्कोर एग्जाम्पल, जो मैंने ऑलरेडी बना रखा है यहाँ पे, और ओके करेंगे। यहाँ पे हमारा फोल्डर बन जाएगा। उस फोल्डर के अंदर हम अपनी फाइल बनाएंगे home.width। वो कैसे बनाएंगे, क्लिक ऑन दिस, क्लिक ऑन न्यू, न्यू के अंदर हम डार्ट फाइल पे जाएंगे, डार्ट फाइल के अंदर हम ऐड करेंगे होम अंडरस्कोर विड्थ, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना रखी है। यहाँ पे हम अभी ये फोल्डर की अपनी फाइल बना देंगे। सो सी हियर, ये मैंने अपनी फाइल बना रखी है एक होम के नाम से। इसके अंदर क्या करेंगे, हम एक प्लेस होल्डर के नाम से और एक वो बनाएंगे डार्ट फाइल, प्लेस होल्डर के यहाँ पे हम 3 डार्ट फाइल बनाएंगे, मैन फर्स्ट ऑफ, देन होम विड्थ एंड प्लेस होल्डर। होम के अंदर हम इंपोर्ट कर लेंगे हमारी प्लेस होल्डर को, प्लेस होल्डर डार्ट फाइल को हम यहाँ पे होम के अंदर ऐड कर लेंगे। ऐड कैसे करते हैं, सिंपली इंपोर्ट प्लेस होल्डर डार्ट, ये आपकी हो रखी, मैंने पहले ही कर रखी है। फिर एक क्लास क्रिएट करेंगे होम नाम से, एक्सटेंड करेंगे उसकी, एंड स्टेट सेट करेंगे, रिटर्न होम, जो स्टेट बनाई हमने उस क्लास की स्टेट पे करेंगे। स्टेट के अंदर हम जो हमारे एक लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट का करंट जो इंडेक्स है वो सेट करेंगे, जो हमारा पेज व्यूअर है, पेज व्यूअर का। देन एक लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट के अंदर हम प्लेस होल्डर की, जब भी हम जैसे प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं, सर्च पे क्लिक करते हैं, या हम होम पे क्लिक करते हैं, तो वो प्लेस होल्डर हमारे इस प्लेस होल्डर में जाके वो कलर सेट कर देगा, ये वाले कलर जो भी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद हम एक ये विड्थ बनाएंगे, उसके अंदर ऐप बार लेंगे, ऐप के अंदर टाइटल सेट करेंगे अपनी एप्लीकेशन का, एंड देन बॉडी कंटेनर, बॉडी के अंदर करेंगे, एंड देन टैब, बॉटम नेविगेशन लेंगे, बॉटम नेविगेशन लेके एक्सटेंड करेंगे बॉटम नेविगेशन, एंड ऑन टैब, बॉटम नेविगेशन के टैब पर हम जो अपनी इंडेक्स है उसको स्टार्ट करेंगे, और उस हमारी उसके अंदर हम हमारे बॉटम नेविगेशन के अंदर आइटम ऐड करेंगे, बॉटम नेविगेशन बार आइटम, आइटम के अंदर हम ऐड, फिर हमारा जो बॉटम नेविगेशन बार का आइटम होगा उस पर उसका आइकन सेट करेंगे, उसका टाइटल सेट करेंगे, सेकंड बॉटम नेविगेशन आइटम ऐड करेंगे, उसका टाइटल सेट करेंगे, एंड थर्ड ऐसे ही बॉटम नेविगेशन लेंगे और उसका टाइटल सेट करेंगे। अपने अकॉर्डिंग जो भी हमें वो बनाए हैं, हमें ऐसे ही टाइटल और सेट कर देंगे जितने मेन्यू हमें बॉटम नेविगेशन बार में चाहिए। उसके बाद ऑन टैब जो ये मेथड हमने क्लिक किया था, हमारे बॉटम जो नेविगेशन बार होगा, जो हमारा ये होगा ऑन टैब पे, जो ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये वाला ऑन टैब पे हम वो अपना जो इंडेक्स है वो सेट करेंगे, और उसकी स्टेट हम सेट कर देंगे अब इंडेक्स। देन इन प्लेस होल्डर में क्या करेगा,
प्लेस होल्डर के अंदर हम कलर लेके आएंगे, प्लेस होल्डर दिस कलर एंड कंटेनर से वो कलर है वो सेट कर देंगे अपने कंटेनर के अंदर। यहाँ से जैसे हम प्लेस होल्डर, अगर हमारा इंडेक्स 0 है तो प्लेस होल्डर 0, इंडेक्स की वैल्यू 1, जैसे ही 1 होगी प्लेस होल्डर है जो कलर ले लेगा डीप ऑरेंज, यहाँ पे हमारा डीप ऑरेंज आ जाएगा। एंड जब हम हमारा जो इंडेक्स की वैल्यू है 3 हो जाएगी तो हमारा ये कलर ग्रीन ले लेगा। जस्ट फॉलो स्टेप, कॉपी दिस कोड, copy and paste here, just simply, and placeholder, copy this code and paste in placeholder। ये थ्री सिंपली स्टेप कंप्लीट करने के बाद अपने एप्लीकेशन को हम रन करेंगे। पहले हम इस एप्लीकेशन को बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं हम अपनी एप्लीकेशन को अभी, और अपनी एप्लीकेशन को अब हम करते हैं रन। एप्लीकेशन बिल्ड होने लग गई हमारी, लॉन्च एंड देन एप्लीकेशन इज लॉन्च। यहाँ पे आप आउटपुट चेक करेंगे, जैसे होम, हमारी बॉटम नेविगेशन रेडी है, होम, सर्च एंड प्रोफाइल, होम, सर्च एंड प्रोफाइल। अगर हमें आपको कुछ और चाहिए तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, जैसे होम है, होम को हम मेन्यू बनाना है हमें, तो यहाँ पे मेन्यू, यहाँ पे हम मेन्यू डाल देंगे, आइकन, मेन्यू, यहाँ पे हमें लगाना जैसे मैप, यहाँ पे हम आइकन मैप सेट कर देंगे। यहाँ पे जैसे हमने करना है लोकेशन, तो यहाँ पे हम लोकेशन आइकन सेट कर देंगे, लोकेशन ऑन, लोकेशन ऑफ, मैप एंड देन अब हम रन करेंगे। अब हमारी यहाँ पे रिफ्लेक्शन देखना, मेन्यू, मैप एंड लोकेशन, यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन के आइकन और वो सेट कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन के अंदर, जैसे मैंने अभी ये आपको चेंज करके दिखाया। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। ऑल अपडेट के लिए आप मेरे यूट्यूब के चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरी वेबसाइट पे आपको ऑल अपडेटेड कोड मिलेगा, और एंड्रॉयड, फ्लटर, ऑल द अपडेटेड code, all updated solution my YouTube channel. So thank you very much for watching my video, and all latest solution के लिए आप मेरे से जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच। Hey, hi, how are you? Today I am discussing on how to create filter introduction slider for filter। फिल्टर के अंदर आप
इंट्रोडक्शन स्लाइडर को कैसे यूज करेंगे, ये हम टुडे डिस्कस करेंगे कि हम अपनी मोबाइल की ऐप के यूआई को कैसे इम्प्रूव करें और कैसे हम अपनी मोबाइल की ऐप के अंदर इंट्रोडक्शन स्लाइडर हम यूज करें। फर्स्ट ऑफ जैसे हम अपने एप्लीकेशन को ऑन करते तो एप्लीकेशन ऑन करते टाइम हम देखते हैं कि हमारे एप्लीकेशन के अंदर एक इंट्रोडक्शन के लिए वो आती है, तो वो फ़िल्टर के अंदर हम अपनी इंट्रोडक्शन को कैसे इन के लाइक एज सी इन एग्जाम्पल हेयर एंड नेक्स्ट एंड दिस फर्स्ट ऑफ like search फिर then order and then delivery and start now। तो दिस टाइप ऑफ स्लाइडर हाउ टू यूज इन फिल्टर में हम इस तरह की स्लाइडर को कैसे यूज करेंगे तो हम डिस्कस करने चलो। लेट स्टार्ट ऑन tutorials। These are easy simply step to follow and make your application with introduction slider। So first of you just use making in for better UI for users। So start your Android Studio and create your filter application in filter, then you can open your main। So let's start on slider। Here is my some files। फर्स्ट ऑफ इफ अगर आप फर्स्ट ऑफ आपको अगर क्रिएट करना नहीं आता तो क्लिक ऑन फाइल पे न्यू एंड देन न्यू फिल्टर प्रोजेक्ट्स। आफ्टर क्लिक ऑन फिल्टर प्रोजेक्ट्स दैट you select a filter application and then click on next। set your project name, SDK path, location of your and description, then click on next। after that set your domain name like as your company name and your domain name। so then click on finish। यहाँ पे मैंने एग्जैक्टली एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है तो मैं उसी को यूज करूँगा। आप ऐसे ही अपना प्रोजेक्ट वो क्रिएट कर सकते हैं। तो जब आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुली सिंक्रोनाइज हो जाए उसके बाद अपने लैब फोल्डर के अंदर जाएंगे। लैब फोल्डर के अंदर मैन डॉट डाट फाइल को ओपन करेंगे। मैन डॉट डाट फाइल में जो कोड है उसको क्लियर करेंगे, डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद यहाँ से हम ये स्टेप हैं जो हमारे ये स्टेप हैं वो फॉलो करेंगे। लाइक फर्स्ट स्टेप हमारा फर्स्ट स्टेप स्टार्ट योर Android Studio and make your filter application and finish step। after complete synchronize your project your main dot for clear all code को क्लियर कर देना है। उसके बाद ऐड दिस कोड इन योर मेन डॉट जो आपकी मेन डॉट फाइल है उसके अंदर आपको ये कोड ऐड करना है। लाइक एस कॉपी दिस कोड and पेस्ट ऑन योर मेन डॉट डाट फाइल। हेयर ऑलरेडी मैंने पेस्ट कर रखा है कोड। तो फर्स्ट ऑफ इंपोर्ट कर रखी है डाट इनपुट आउटपुट एंड देन एक फोल्डर क्रिएट कर रखा है डाटा नाम का और उसके अंदर एक डाटा नाम से डाट फाइल क्रिएट कर रखी है। फिल्टर का एक प्रोजेक्ट है वो हमने इसके अंदर इंपोर्ट कर रखा है। फिर मैन फंक्शन के अंदर हमने क्लास बनाई माई ऐप के नाम से। ये माई ऐप के नाम से उसको स्टेटलेस विड्थ हमने सेट की। देन बिल्ड किया होम एंड देन सेट होम एक क्लास बनाई। उसके अंदर हमने
बैनर फॉल्स कर दिया। इस इन होम क्लास you can set a set state of your class home state. In home state you can create a list slider model for adding image in your slider. For creating list in list with first of we set slider index 0 and set a controller build. After that build you can set height, width, current page and color. आफ्टर दैट वी इंट स्टेट एक जो हम स्टेट है वो इसकी क्रिएट करेंगे। उस स्टेट के अंदर हम अपने जो स्लाइडर है उसको गेट करेंगे वैल्यू को और कंट्रोलर को सेट करेंगे। पेज जो हमारा पेज कंट्रोलर है उसको करेंगे। फिर एक विड्थ बनाएंगे हम अपने पेज व्यू के लिए जिसमें हम क्या करेंगे अपनी जो स्लाइडर है हमारी इमेजेस है वो यहाँ पे रन करेंगी। तो फर्स्ट ऑफ विड्थ then set color white and then create a page viewer. In page viewer controller on page change index change and set slider index. First of slider index हमने 0 रखा है तो then set slide and then slider 0 slider 1 slider 2. These are 3 slider and set in bottom a skip button and container row and on pause. This is slider index and click on next. In next on tab print get start now. After complete next slider and set the get start now. And after that we created data folder in lab. Like as click on, then next step is create a SS folder and in image folder add image on this. And first of we showing SS folder SS folder को हम ऐड कैसे करेंगे वो फर्स्ट ऑफ सी क्लिक ऑन योर प्रोजेक्ट then new and then directory. Click on directory assessed. Name already exist. ये मैंने यहाँ पे बना रखी है इसलिए मेरी ये already exist बता रखी है। ऐसे हम अपनी SS फोल्डर को डायरेक्टली करेंगे। उसके अंदर हम क्या करेंगे जो इमेजेस हैं वो डालेंगे। मैंने पहले से ये 3 इमेज डाल रखी हैं। आप SS फोल्डर के अंदर इमेज डालेंगे। ये मैंने इमेज डाल रखी है। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग इमेज है वो डाल देंगे। देन नेक्स्ट स्टेप create a data folder and add this code. Go to create a data folder. In data folder we can add a data.dart file. In data folder how to add, click on lab new and add package. The package name is data is already add. डेटा फोल्डर को हम कैसे ऐड करेंगे जो लैब है हमारा फोल्डर है लैब फोल्डर पे हम हमारा राइट क्लिक करेंगे देन न्यू पे क्लिक करेंगे उसके बाद हम ऐड पैकेज और ऐड डेटा फोल्डर हम बनाएंगे और डेटा फोल्डर के अंदर फिर हम एक
डाटा डार्ट फाइल ऐड करेंगे। वो कैसे? डाटा के ऊपर जाएंगे, न्यू, और न्यू के अंदर डार्ट फाइल। इन डाटा डाटा डार्ट डॉट फाइल पे हम क्या करेंगे, एक स्लाइडर क्लास बनाएंगे। उसके अंदर इमेज, टाइटल और उसकी डिस्क्रिप्शन, जो हमारा स्लाइडर होगा, स्लाइडर की में इमेज, टाइटल और डिस्क्रिप्शन है वो ऐड करेंगे। फिर उसके बाद हम ये यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। देन सेट टाइटल, सेट डिस्क्रिप्शन और गेट इमेज पाथ। get title and get description. In list slider we can set slider description, slider title, slider image path and set on slider. Then new slider, set description, title and image path. Then description, title, image path and set on slider model and return to slider in this slider list. So after complete this, your image, this all image add on pub space yml. In yml file you can add your all image here in assessed. Add your folder in yml file, assess folder के अंदर assessed, और assessed के अंदर हमारी इमेजेस वो सारी हमें यहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर ऐड कर देंगे। ml फाइल इज एडिंग फॉर ऑल लाइब्रेरीज। ml फाइल का बेसिकली यूज ही जो लाइब्रेरी है, लाइक जैसे हमारी एंड्रॉयड की एप्लीकेशन के अंदर हमारा ग्रीडल बिल्ड होता था, वैसे ही असेस्ट हमारा यहाँ पे yml हमारा ग्रीडल बिल्ड की तरह लाइब्रेरी और एसडीके वर्जन और वर्जन को एक्सप्लेन करता है हमारी एप्लीकेशन वर्क पे। सो आफ्टर कंप्लीट ऑल द स्टेप्स, run your application in emulator. Run your application. Application on starting mode, we build and hot restart performing. Application run your application again. There is some taking time for building. यहाँ पे आप आउटपुट देखिए, सर्च स्लाइडर 1
next, slider to next, and then start now. You can set, see, all these. You click skip, then click on start and see this. इंफॉर्मेशन स्लाइडर को आपको बनाने के लिए अपनी एप्लीकेशन के लिए जस्ट सिंपली ये 4 स्टेप फॉलो करने हैं। अपनी साइट में उसको डाल के अपनी ऐप का एप्लीकेशन का यूआई बेटर करने के लिए इंट्रोडक्शंस अपने एप्लीकेशन में डालने के लिए सिंपली दिस 4 स्टेप, जस्ट स्टेप 1, स्टेप 2 and step 3 and step 4। जस्ट सिंपली 4 स्टेप में आपकी जो फ़िल्टर की इंट्रोडक्शन वाली एप्लीकेशन है वो बन के रेडी है। एंड या आउटपुट आप यहाँ पे चेक करें। अगर आपको मेरी वीडियो और मेरा ट्यूटोरियल अच्छा लगा है, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। एंड्रॉयड के ऑल न्यू अपडेट्स के लिए, सॉल्यूशन के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एंड्रॉयड के फ़िल्टर के और आप ऑल लेटेस्ट सॉल्यूशंस ट्यूटोरियल्स अवेलेबल होंगे। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू codeplayon.com। टुडे हम डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो फ्लटर के अंदर हम स्प्लैश स्क्रीन कैसे इंक्लूड करेंगे इन फ्लटर। हाउ टू क्रिएट स्प्लैश स्क्रीन फॉर यूआई क्रिएटिंग फॉर दिस। and in this video easy example for splash screen with filter dart। so let's start on projects। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो के लिए और सॉल्यूशन के लिए। टाइम टू टाइम आप एंड्रॉयड फिल्टर और ऑल लेटेस्ट एडवांस ट्यूटोरियल्स, सॉल्यूशन एंड प्रोजेक्ट्स लाइव एग्जाम्पल see here। please subscribe my YouTube channel। thanks। so let's start on project। create a simply splash screen in filter dart with। and so let's start on project। start your Android Studio and make a simply splash screen projects like as this splash animation, this type of splash screen in your filter के अंदर हम स्प्लैश स्क्रीन को कैसे बनाएंगे वो हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लाइक एस दिस सिंपली, जस्ट सिंपली स्टेप आपको फॉलो करने हैं। 2-3 सिंपली स्टेप हैं वो फॉलो करने हैं और आप एक अपनी ब्यूटीफुल स्प्लैश स्क्रीन फिल्टर के अंदर बना सकते हैं। सो स्टार्ट ऑन प्रोजेक्ट्स। first off we create a filter projects। click on file, after that new, in new, after that we can create a new flutter project। click on flutter projects, click application, select filter application, click on next and set project name splash screen। then click on
set filter SDK path, project location and description of your projects. Click on next. Set domain using Android X. For Kotlin, including Kotlin support for Android code, including Swift support for iOS code. बेसिकली हम सिंपली इसके अंदर चेंजेस भी कर सकते हैं। iOS के अंदर अगर हमारा फिल्टर नहीं है तो स्विफ्ट और कोटलिन के थ्रू हम अलग अलग भी उसको सेपरेट कर सकते हैं, बिकॉज हम यहाँ पे दोनों एंड्रॉयड और iOS के लिए एक सिंगल कोड से एप्लीकेशन को बनाएंगे। सो क्लिक ऑन फिनिश। आफ्टर फिनिश योर प्रोजेक्ट्स आर रन हेयर and in lab folder application C, click on application. After application click on lab folder. In lab folder you can see main.dart file. Open main.dart file or clear the code, clear code, and then you can just follow simply step of there. Just splash screen iOS for bit and create simply step 1. Start your Render Studio, make filter projects, your splash screen filter projects, and open your application. Your application package name successfully synchronized. After main.dart file, open your main.dart file in lab folder and clear all the code in main.dart file. Just simply copy this code, copy and paste in your main.dart file. You can paste this code here in your main.dart file. After in Dart file we can use import synchronize, import a Dart file in a constant folder, import a splash animation Dart file in screen folder, or import a screen folder home page, and import Flutter material design. So see here this all these. So let's after that create main function, synchronize and add material app, set title and theme, and then you can set home animation your first of we. After that we home screen. After animation we go on home screen, then button and splash on this. So next step I am follow here. Add contact package in lab and content package. Create a content.dart file and use this code. So how to create package? Click on this lab folder, click right click on lab folder, new, and after new add package. Add package we can see constant. ऑलरेडी मैंने ये क्रिएट कर रखा है कांस्टेंट, तो इसलिए मेरे को दिखा रखा है ऑलरेडी आपका ये है एग्जिस्ट है। तो आपको ये ऐसे कांस्टेंट क्रिएट कर लेना है एंड कांस्टेंट के अंदर आपको एक डार्ट फाइल है वो क्रिएट करनी है। डार्ट फाइल कैसे क्रिएट करेंगे? कांस्टेंट राइट क्लिक ऑन न्यू एंड आफ्टर दैट डार्ट फाइल. इन डार्ट फाइल सेट नेम constant and click on OK. In constant this and constant file you can just copy this code and paste. Here you can see step
how to create a constant folder, and fourth step is make a access folder in your project, adding for image in access folder। एक accessed folder बनाना होगा हमें, जिसके अंदर हम अपनी जो इमेजेज हैं, जो एनिमेशन के अंदर हम इमेज यूज करेंगे वो इमेज पेस्ट करेंगे। तो access folder हम कैसे बनाएंगे? क्लिक ऑन प्रोजेक्ट, राइट क्लिक ऑन प्रोजेक्ट and then go folder and see। so let's start on this step। constant हमारा बन गया। आफ्टर हम क्रिएट करेंगे एसएस फोल्डर, दिस एसएस फोल्डर, इस एसएस राइट क्लिक ऑन दिस। आफ्टर वी कैन ऐड डायरेक्टरी, इन डायरेक्टरी वी कैन सेट असेस्ड। ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर रखा है इसलिए ऑलरेडी इसने दिखा दिया असेस्ड, असेस्ड। click on OK, your assessed folder is add here। in assessed folder we can use add image। click on assessed, right click on go to file, add directory image। इमेज मैंने पहले बना रखा है, तो ऐसे आप इमेज फोल्डर बनाएंगे और इस इमेज फोल्डर के अंदर हम क्या करेंगे, इमेजेस को पेस्ट कर देंगे। जो भी हमारी इमेज होगी वहाँ हम उठाएंगे और अपनी इमेज को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इमेज को यहाँ पे हमारी इमेज आ जाएगी और वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी हमारे इमेज फोल्डर के अंदर। आफ्टर दिस स्टेप ऑल इमेज ऐड इन पब स्पेस YML फाइल। जो इमेज हमने यहाँ पे पेस्ट की हैं वो इमेज हम अपने YML फाइल के अंदर ऐड करेंगे। YML फाइल हमारी एंड्रॉयड स्टूडियो में जैसे ग्रिडल फाइल होती थी हमारी, ऐसे ही YML फाइल होती है। ये YML फाइल है हमारी। YML फाइल के अंदर जाएंगे हम, यहाँ पे जाके हम जो ये असेस्ड का था जो हमारा वो हम पेस्ट कर देंगे। ये हमारी इमेज आ गई असेस्ड फोल्डर के अंदर, एनिमेशन इमेज वीडियो लोगो एंड पावर्ड बाय दिस इमेज हमारी, जो हम अपनी स्प्लैश स्क्रीन के अंदर यूज करेंगे इमेज लोगो एंड टेक्स्ट। सो YML फाइल के अंदर हम जो हमारी वो है वो यूज ऐड कर देंगे हम। आफ्टर दिस स्टेप नेक्स्ट स्टेप इज क्रिएट ए एनिमेशन स्प्लैश स्क्रीन डॉट डार्ट फाइल। अब हमें क्या करना है, एक डार्ट फाइल क्रिएट करनी है एनिमेशन स्प्लैश स्क्रीन के नाम से। सो स्टार्ट ऑन गो ऑन प्रोजेक्ट्स, इन लैब फोल्डर, इन स्क्रीन्स। स्क्रीन के अंदर हम एक डार्ट फाइल क्रिएट करेंगे। किस नाम से? डार्ट फाइल किस नाम से करेंगे? एनिमेशन स्प्लैश स्क्रीन। एनिमेशन स्प्लैश स्क्रीन के नाम से हम वो बनाएंगे। मैंने ऑलरेडी ये बना रखी है इसलिए आप ऐसे ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद अपनी एनिमेशन स्क्रीन को ओपन करेंगे। एनिमेशन स्क्रीन को ओपन करने के बाद यहाँ से ये कोड कॉपी करेंगे। कॉपी एंड देन पेस्ट। यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। मैंने ऑलरेडी बना रखा है इसलिए मैं पेस्ट नहीं, आप वहाँ पे आया, आप यहाँ पे आके आपको पेस्ट कर देना है। इसके अंदर क्या हमने क्या किया, डार्ट सिंक्रोनाइज कर रखी है। जो डार्ट फाइल है वो हमारा पैकेज है, पैकेज कर रखा है स्प्लैश स्क्रीन कांस्टेंट। जो हमारी कांस्टेंट वाली फाइल है वो कांस्टेंट वाली फाइल हमने यहाँ पे यूज कर रखी है, डार्ट कांस्टेंट। एंड क्रिप्टो जो फ़िल्टर पैकेज, एक फ़िल्टर पैकेज ऐड कर रखा है, फ़िल्टर मटेरियल पैकेज ऐड कर रखा है। यहाँ पे हमने अपनी कांस्टेंट जो डार्ट फाइल है वो भी यूज इंपोर्ट कर रखी है। तो क्लास बनाएंगे अपनी, उसकी स्टेट सेट करेंगे एंड देन क्रिएट स्टैट एंड स्टेट।
animation this class. In this class we can set task, single task tracking provider, set variable animation there, and control animation see double animations at start, टाइम, ड्यूरेशन, हमें स्प्लैश स्क्रीन कितनी सेकंड के लिए चलानी है, तो मैंने यहाँ पे 3 सेकंड के लिए जो है अपनी स्प्लैश स्क्रीन को 3 सेकंड के लिए रन किया है, टाइम सेट किया है, एंड देन नेविगेट पेज। मेरी जो स्प्लैश स्क्रीन 3 सेकंड के बाद कहाँ पे नेविगेट करना है, वो नेविगेट के अंदर मैंने सेट कंटेंट पुश रिप्लेस नेम, और मैंने उसको रिप्लेस कर दिया अपनी होम स्क्रीन के, कि मेरी जो 3 सेकंड के बाद मेरी स्प्लैश स्क्रीन कहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाए, मेरी होम स्क्रीन पे, उस पर मैंने नेविगेट कर दिया। सो अब स्प्लैश स्क्रीन का डिज़ाइन तैयार करते हैं। एक इंटेंट स्टेट बनाई, उसके अंदर एनिमेशन कंट्रोल किया, एनिमेशन को कंट्रोल 2 सेकेंड के लिए हमने वो किया एनिमेशन को, और हमारा टाइम है स्टार्ट कर दिया, जो एनिमेशन का हमारा स्क्रीन का ड्यूरेशन है। यहाँ पे हम फिर अपनी वेट्स को बिल्ड करेंगे। एक कॉलम लिया, उस कॉलम के अंदर मैक्सिमम साइज उसका ऐड किया, पेंडिंग सेट की, और बॉटम उसकी जो अलाइनमेंट है बॉटम 30, एंड एक इमेज चाइल्ड, एक इमेज ली लाइक एज दिस टाइप ऑफ इमेज के अंदर पावर्ड बाय एंड सेट किया। देन अगेन एक कॉलम बनाया, उस कॉलम के अंदर हमने अपनी जो इमेज है वो सेट की, सेट पे एनिमेशन चलाई, एनिमेशन कितनी 2.50 के लिए हाइट और विड्थ, इस हाइट विड्थ पे हमने अपनी एनिमेशन चलाई लोगो वाले पे, ये पावर्ड बाय हमने सेट कर दिया दिस फॉर यूआई लाइक अपनी स्क्रीन। next step is create home screen dart file in home screen, and after that we can create a home screen, this home screen for जो हमारी एनिमेशन कंप्लीट होने के बाद हमें जहाँ पे रीडायरेक्ट करना है वो हमारी होम स्क्रीन एंड आफ्टर एडिंग होम स्क्रीन कैसे, स्क्रीन फोल्डर के अंदर हम जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जाके हम एक हमारी डार्ट फाइल बना देंगे, होम स्क्रीन बना के हम उसको ऐड कर देंगे। होम स्क्रीन में अभी हमें डिजाइन नहीं करना है, ये वाला ऐसा कुछ डिजाइन वो नहीं करना है, डिजाइन को हम रहने देते हैं। होम स्क्रीन हमारी रहेगी, अब रिडायरेक्ट हो जाएगा हमारी होम स्क्रीन पे, और आफ्टर दैट हम इसको अपनी एप्लीकेशन को रन करेंगे। मैं इसको होट रीलोड करता हूँ, रन कर, बिल्ड होने लग गई हमारी एप्लीकेशन रन होने लग गई। अभी आप यहाँ पे चेक करेंगे हम अपने एप्लीकेशन को रन करते हैं, और यहाँ पे चेक करते हैं अपनी एनिमेशन। स्टार्टिंग में एनिमेशन आई और हमारी होम स्क्रीन पे चली गई। अब होम स्क्रीन पे हमें नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाएंगे होम स्क्रीन को कैसे डिजाइन करेंगे, हमारी एनिमेशन कैसे चल रही है। ऐसे एनिमेशन चली और होम स्क्रीन पे रिडायरेक्ट, एनिमेशन के बाद होम स्क्रीन पे रिडायरेक्ट। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिजाइन करेंगे हम होम स्क्रीन पे बटन कैसे डिजाइन करते हैं, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आपको लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर दिस। थैंक यू, बाय बाय, codeplayon.com। Let's start. Hello friends, how are you? Welcome to codeplayon.com। टुडे हम डिस्कस करेंगे कि फ्लैटर के अंदर हम बटन कैसे डिजाइन करेंगे विद इमेज एंड टेक्स्ट।
बटन के लिए हम यूआई डिजाइन कैसे करेंगे, जिस बटन के अंदर हम इमेज को और टेक्स्ट को कैसे ऐड करेंगे, हम ये डिस्कस करेंगे। लाइक एज दिस दिस टाइप से हम दिस टाइप का हम यूआई कैसे बनाएंगे फ्लटर के अंदर। बटन के अंदर इमेज और टेक्स्ट और बटन का कलर और यूआई। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फ्लटर के अंदर बटन डिजाइन कैसे करेंगे यूआई। तो लेट्स स्टार्ट ऑन दिस। If you not subscribe my YouTube channel, please subscribe my YouTube channel for all latest update for Flutter and Android, iOS both, and live projects. See live code and full source code on my website codepleon.com, and see simply step in my YouTube channel codepleon.com. So please subscribe my YouTube channel. Thank you. टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो प्रोजेक्ट्स पे जाते हैं। हम अपने मोबाइल स्क्रीन के अंदर कैसे हम बटन डिजाइन करेंगे फ्लटर के अंदर। सो फॉलो दिस सिंपली स्टेप। Everyone, in this article we build a UI designing for Flutter image, text and button. So step 1, start your Android Studio, make a Flutter application. And first step, you can start application, make and open you or synchronize, open your main.dart file and clear all code on main.dart file. main.dart फाइल से अपना जो कोड है वो पूरा क्लियर करेंगे। स्टेप 2, ऐड इमेज इन प्रोजेक्ट्स फॉर बटन आइकन। जो इमेज है वो ऐड करेंगे हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर। कैसे ऐड करेंगे, बटन एसएस फोल्डर बनाएंगे, प्रोजेक्ट्स, राइट क्लिक ऑन प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद न्यू डायरेक्टरी एंड एसएस फोल्डर बनाएंगे। सेम टू दिस एंड इमेज ऐड करेंगे उसके अंदर एसएस फोल्डर के अंदर। और जो इमेजेस है वो हम YML के अंदर हम ऐड कर देंगे अपनी। देन क्रिएट करेंगे home.dart फाइल और उसके अंदर ये सिंपली जो कोड है पेस्ट कर देंगे हम। ये वाला कोड हम पेस्ट कर देंगे हमारे। और main.dart फाइल स्टेप 4, main.dart फाइल के अंदर हम ये कोड पेस्ट करेंगे। तो सिंपली बटन यू के लिए 4 स्टेप हैं। ये 4 स्टेप आपको फॉलो करने हैं सिंपली। सो लेट्स स्टार्ट ऑन। फर्स्ट ऑफ क्रिएट प्रोजेक्ट फ्लटर के अंदर हम नया प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे। क्लिक ऑन न्यू, आफ्टर दैट न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट्स and then select Flutter application. Click on next, set application name Flutter button example. Set SDK for Flutter, project location and project description, and click on next. Set domain using Android X and platform Kotlin for Android and Swift for iOS, both of platform including this language. Click on finish and click on finish. Synchronize after your project. You can see this. मैंने ऑलरेडी बना रखा है इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। सबसे पहले पहला स्टेप हम फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। एप्लीकेशन बना दी हमने, main.dart फाइल बना दी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इमेज ऐड करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। इमेज ऐड करेंगे। इमेज कैसे ऐड करेंगे, एसएस फोल्डर कैसे बनाते हैं ये बताता हूँ। सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट्स पे जाएंगे। प्रोजेक्ट्स पे राइट क्लिक करेंगे, राइट के बाद न्यू, और न्यू के बाद हम जाएंगे डायरेक्टरी के अंदर हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो है फोल्डर वो क्रिएट करते हैं। क्लिक ऑन डायरेक्टरी, ऐड एसएस फोल्डर।
ये मैंने ऑलरेडी बना रखा है इसलिए दिखा दिया। ए डायरेक्टरी विद नेम असेस्ट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, मैंने ऑलरेडी बना रखी है इसलिए ये यहाँ पे आपको ये दिखा दिया इन्होंने कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है। ये मेरी असेस्ट है। असेस्ट के अंदर हम इमेज फोल्डर बनाएंगे। इमेज फोल्डर कैसे बनाते हैं, क्लिक ऑन असेस्ट, असेस्ट पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू, और न्यू के बाद डायरेक्टरी, डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे इमेजेस। इमेजेस मैंने ऑलरेडी बना रखी है इसलिए ये आपको इमेजेस वो आ गई, क्लिक करेंगे ओके, एंड देन इमेज सिलेक्ट करेंगे जो हमारे पास इमेज है और यहाँ पे हम उसको इमेजेस को पेस्ट कर देंगे। हमारे इमेज फोल्डर के अंदर हम इमेज को पेस्ट कर देंगे जो भी इमेज हमें चाहिए होंगी। इस स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, ये स्टेप पूरा हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो इमेजेस हमने ऐड किए हैं हमारे इमेज फोल्डर के अंदर असेस्ट के अंदर, वो हम अपनी YML फाइल के अंदर ऐड करेंगे। जो इमेजेस हमने यहाँ पे ऐड की हैं, ये वाली इमेज हमें अपनी लाइब्रेरी फाइल के अंदर पब सब YML फाइल के अंदर हम ऐड करेंगे। कहाँ पे, असेस्ट। ये कमेंट भी कर रखा है इन्होंने, दे रखा है टू ऐड असेस्ट योर एप्लीकेशन ऐड सेक्शन लाइक दिस। असेस्ट के अंदर इमेज नेम और उसका टाइप। सो हम भी उसकी तरह इजीली क्या करेंगे, यहाँ पे वो कोड उठाएंगे और पेस्ट कर देंगे। असेस्ट के अंदर इमेज, जो भी हमने इमेज यहाँ पे अपनी डाली है, ये वाली इमेज, ये जो इमेजेस हैं वो हमने यहाँ पे ऐड कर दी अपनी इमेजेस। सब स्पेस डॉट YML फाइल का अंदर हम अपनी लाइब्रेरी ऐड करते हैं फ्लटर के अंदर। सो नेक्स्ट स्टेप पे हम जाएंगे क्रिएट होम डॉट डाट फाइल क्रिएट करेंगे। इन लैब के अंदर जाएंगे, यहाँ पे जाके स्क्रीन के अंदर हम क्या करेंगे, होम डाट फाइल क्रिएट करेंगे। क्लिक ऑन डाट फाइल, होम स्क्रीन जो डाट फाइल है वो क्रिएट करेंगे हम यहाँ पे। हम यहाँ पे जाके अपनी वो ऐड करेंगे। हमारी होम स्क्रीन बन गई और हमारी मैन डॉट डाट फाइल बन गई। मैन डॉट डाट फाइल के अंदर हमने एनिमेशन भी बना रखी है, और जो हमने पिछली वीडियो में लिखा था एनिमेशन, सबसे पहले हमारी क्या चलेगी, एनिमेशन चलेगी। एनिमेशन के बाद हम होम उस पर डायरेक्ट कर जाएंगे और होम पे हम डिजाइन करेंगे बटन। तो बटन को कैसे डिजाइन करेंगे ये हम देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारी क्लास क्रिएट हो जाएगी। क्लास क्रिएट होने के बाद हम उसको एक्सटेंड करेंगे और उसकी स्टेट सेट कर देंगे। स्टेट सेट करने के बाद हम विड्थ बनाएंगे बटन के लिए, ऐप बार, उसका कलर सेट करेंगे। देन बॉडी, आफ्टर बॉडी वी कैन क्रिएट ए कॉलम। फर्स्ट कॉलम फॉर टेक्स्ट सेट करेंगे। होम पेज रखेंगे टेक्स्ट का नाम, एंड अगेन एक कॉलम क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट कॉलम फॉर बटन, this button for this code is for video splash। this code for video हम यूज करेंगे ये बट किस लिए यूज करेंगे, हम यहाँ पे बटन का नाम लिखेंगे वीडियो प्लेयर। कॉलम, एक बटन का कॉलम क्रिएट किया, उसका साइज सेट किया, अलाइनमेंट सेट की सेंटर, एंड देन न्यू बटन टाइप रेड बटन,
इवोल्यूशन सेट की, उसकी शेप की, बटन राउंडेड बॉर्डर एंड बटन की सर्कुलर ऐड किया, रेडिएशन बॉर्डर एंड पैडिंग सेट की। ऑन पुश पे हमने क्या किया, वीडियो स्प्लैश जो नेविगेट कर दिया नेक्स्ट स्क्रीन पे। एंड चाइल्ड के अंदर फिर हमने उसका साइज सेट किया, इमेज ऐड कर दी और इमेज का साइज है वो सेट किया। और देन टेक्स्ट ऐड करा, टेक्स्ट ऐड किया, टेक्स्ट हमने टेक्स्ट सेट किया और स्टाइल सेट किया टेक्स्ट का, टेक्स्ट और देन अगेन हमने एक और कॉलम बनाया, उस कॉलम के अंदर फिर से हमने एक बटन बनाया, बटन का साइज सेट किया, उसकी बॉर्डर सेट किया, पैडिंग की, देन पैडिंग के बाद इमेज और नेक्स्ट हमने सेट उसका टाइटल सेट करेंगे। नेक्स्ट बटन पे हमने सेट किया गैलरी और उसका स्टाइल सेट कर दिया। उसके बाद हम जो हमारी वो है उसके अंदर इमेज ऐड की, हमने टैग सेट कर दिया। देन एक और हम बटन बनाएंगे, ऐड करेंगे रेडिएशन बटन। इन रेडिएट बटन सेट हाइट टेक्स्ट एंड विड्थ एंड सेट चाइल्ड इमेज, देन इमेज सेट करेंगे। नेक्स्ट बटन के लिए हाइट विड्थ ऐड करेंगे इमेज बटन की एंड उसका कलर सेट करेंगे हम अपनी बटन का। जो टेक्स्ट है टेक्स्ट का कलर सेट करेंगे और जो हमारा बटन है बटन का कलर सेट करेंगे। यहाँ पे फिर हम जब इसको अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं तो रन करने पर हम आउटपुट देखेंगे। ये देखो गैलरी, जो मेरा बटन है वो डाउन छोटा हो गया, किससे, टेक्स्ट की वजह से। जो मैंने हाइट विड्थ है इसकी सेट कर रखी है उसी के अकॉर्डिंग ये मेरी सेट हो जाएगी। और यहाँ पे ये देखो वीडियो एंड गैलरी इमेज एंड एनिमेशंस। तो हम यहाँ पे अभी आपने देखा होगा, यहाँ पे देखो ये कलर क्या है, ब्लैक हो रखा है तो ये अच्छा नहीं लग रहा है। हम क्या करेंगे, इनका कलर, ये जो नेम लिखा हुआ है उनका नेम चेंज करेंगे। अब हम क्या करेंगे, कलर चेंज करेंगे। जैसे मैंने पे गेम लिखा है तो यहाँ पे देखो ये वीडियो का कलर कैसा है, ब्लैक। वीडियो प्लेयर पे जाएंगे, वीडियो प्लेयर और वीडियो प्लेयर का कलर देखो, वीडियो प्लेयर का कलर ब्लैक है तो हम इसका कलर वाइट करेंगे। जो टेक्स्ट है टेक्स्ट कलर हम चेंज कर देंगे वाइट, टेक्स्ट कलर हम सेट करेंगे वाइट, वाइट कलर हम सेट कर देंगे। कलर डॉट कलर एंड देन कलर इज फॉर दिस। या फिर हम डायरेक्टली जो हमारा कलर था इस कलर को हम क्या कर देंगे अभी, एफ एफ जैसे हम उसमें करते थे हमारी एंड्रॉयड के अंदर, हम इसका कलर एफ सेट कर देंगे और रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। हमारा टेक्स्ट है वो हाइड हो गया क्योंकि उसका कलर सेट नहीं हुआ है। तो हम यहाँ पे उसका वाइट कलर ऐड करेंगे, 0x FFFF RGB
RGB कलर है वो ऐड करेंगे 9 9 एंड 9। ये हमारा हो गया ब्लैक टाइप से। अगर हम इसको करते हैं 0 0 0 तो ये हमारा ब्लैक हो गया पूरा का पूरा, डार्क ब्लैक हो गया। और अब हम इसको अगर रन करते हैं, एमुलेटर को रन करेंगे पहले। एमुलेटर हमारा स्टार्ट हो गया एंड प्रोजेक्ट रन करेंगे दोबारा से और आउटपुट देखेंगे। अब ये देखो शो नहीं हो रहा था हमारा बटन का कलर, तो अब देखते हैं हमारा बटन का कलर कैसा आता है। सिंक्रोनाइज होने देंगे हम अपने प्रोजेक्ट को सिंक्रोनाइज होने देंगे। अभी सिंक्रोनाइज होने के बाद हम देखेंगे अपना आउटपुट कैसी आई है हमारी, वो हम चेक करेंगे। यहाँ पे आप देखें आउटपुट ऐसे, आपने डिजाइन ऐसे कर लिया। ओके, बाय बाय, थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल और आगे न्यू अपडेट देखें। ओके, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू codepleon.com. In this tutorials I am discussing on how to create a login screen in Flutter. If you not subscribe my YouTube channel, please subscribe my YouTube channel and press on bell icon for all latest update. तो आज हम डिस्कस करेंगे फ्लटर के अंदर हम लॉगिन स्क्रीन को कैसे बनाएंगे। यूजर नेम, पासवर्ड एंड forget password button and this. In this login screen we have used text width for this and button, flat button and text view. So एक सिंपली लॉगिन स्क्रीन फ्लटर के साथ हम फॉर एंड्रॉयड एप्लीकेशन, आईओ एप्लीकेशन के लिए हम कैसे एक सिंगल कोड से हम एक लॉगिन स्क्रीन बनाएंगे। तो टुडे हम डिस्कस करेंगे लॉगिन स्क्रीन कि हम फ्लटर से लॉगिन स्क्रीन कैसे बनाएंगे अपनी बोथ एंड्रॉयड और आईओएस एप्लीकेशन के लिए। सो लेट्स स्टार्ट ऑन द प्रोजेक्ट्स। ओपन our filter and then you can follow just simply step. Here you can see the example for filter. A simple filter login screen UI like as login screen, input field and button. In this example we have used filter width for text width and button width and text view width. Like as Android, we can in Android I am calling this to edit field, text field and button also. And here you can see output like this. So Flutter login screen you can just like as username, password and button also. So add logo, image, sign up text. For example, in use filter login screen UI, text width, input width and button width also. So first of start your Android Studio, create new filter projects, like click on file, after that new,
क्लिक ऑन फाइल टू न्यू के बाद न्यू फिल्टर प्रोजेक्ट्स, सिलेक्ट filter application, click on next, then set application name Flutter. In previous set application name like Flutter login screen, then click on next. यहाँ पे हम अपनी डोमेन का नेम सेट करेंगे, लाइक मेरी डोमेन codepleon.com and click on finish. After you click on finish, then your project is built. Here you can use Android X package, language for Android and supporting including Swift for iOS, including Kotlin support for Android codes. Click on finish and then run your projects. After run your projects, open your main.dart file and clear all the code. And copy this code and paste here in main.dart file. Paste this code and after adding import filter package UI and import login screen main. After complete this step, your next step is login screen dart file. Make a folder in your lab like as click on right click on lab, न्यू के बाद पैकेज के अंदर ऐड ऐप अंडरस्कोर एग्जाम्पल पैकेज, एक हम पैकेज यहाँ पे ऐड करेंगे, वो एज योर चॉइस। मैंने जैसे ऑलरेडी बना रखा है एग्जाम्पल के नाम से पैकेज, और यहाँ पे ओके कर देंगे। इस पैकेज के अंदर हम एक फाइल बनाएंगे लॉगिन स्क्रीन, लाइक एस लॉगिन स्क्रीन। Click on this class and dart file name is login screen and OK. After OK, you see your main.dart file and include Flutter material, import, create a class login screen, extend width, and after that extend width you can successfully set this your class state full width and create method and set new state for your login screen. In this login screen we have used text edit field for username, text edit field for email, create class state and set here. After that we can use text edit controller for username and for password. After that we can create, उसके बाद हम अपनी जो विड्थ है वो विड्थ क्रिएट करेंगे अपना यूआई के लिए। उसके अंदर ऐप बार यूज करेंगे, ऐप बार पे टाइटल यूज करेंगे लॉगिन स्क्रीन, देन बॉडी पैडिंग जो स्क्रीन की है वो पैडिंग देंगे, पैडिंग इज इक्वल टू 10 जो लाइक एस
UI for this padding. Our main screen is 10. Username, password, and in this text login screen app, set padding for this, and then we can create a container. In container you can add title and style, color, and text width, text size, like as this code play on text color, text size, and text style. This container, and create any other container for set padding. Input username and set int label and user name. See here, you can see user name. Username and password. Again create a container, set padding, child text field, object text true, controller password. This password is here, this edit text, and set this container. Set password, input field, outer line for showing, and password. Use a flat button, input field, and a flat button, and then any other radiation button, like this. Login in flat button on, press nothing, text color, text hint, password. Then use any other container, height 50, padding, child, radiate button, color, and text color, add text, and on press we can print username and password. बट लॉगिन बटन ऑन के प्रेस पे हम प्रिंट कराएंगे अपनी वैल्यू, कंट्रोलर यूजर नेम और कंट्रोलर पासवर्ड, एंड देन अदर कंटेनर यू हैव डोंट अकाउंट फॉर साइन इन. Follow this simply step and use. After that we can run your application here. Select emulator, run your application on build mode, running Gradle task, and here you can see in emulator your output for login screen. This two simply step for make your a simply login screen. Used text field, input field, and button, flat button, and redirecting button UI. Application is run. Here you can see output there. Application is run. In application you can see output there for your login screen. In your application is background, so I am selecting man.dart file, this dart file, emulator starting, and
select this and this and this. In this video, here you can see output. There we can build and run, and you can see output here. Enter username cod code play on, and password 1234567890. Click on next. You can see output there in your code play on, and 12345 print. Your value is print code play on, username and password this according to here, like it changes PARMIT permit MAR like Malik, password 12345678. Click on login. The value get print here. You can see permit Malik and 12345678 password. So in this tutorial we can get username, password and click on button to get activity follow. So thank you for watching this video, and if you like my YouTube channel and help for your development, so please subscribe. अगर मेरे ट्यूटोरियल से और मेरे उससे आपकी नॉलेज इम्प्रूव या आपको हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।